محبت کے ساتھ جس کو جتنی محبت اپنے نبی سے ہے وہ اتنی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں دو تین شعر مرتبت امام علی مقام کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بار حسین کے نام پر بولیں سبحان اللہ. پنجتن کی ذرا چھیڑیے گفتگو, پنجتن کی ذرا چھیڑیے گفتگو, نوری چادر کا قصہ سنا دیجئے. پنجتن کی ذرا چھیڑیے گفتگو, نوری چادر کا قصہ سنا دیجئے. اور سر سے پا تک ہے جو سب نور, سر سے پا تک جو سب نور ہی نور ہے, سر سے پا تک جو سب نور ہی نور ہے. ایسے پیکر کا قصہ سنا دیجئے, ایسے پیکر کا قصہ سنا دیجئے. نوری چادر کا قصہ سنا دیجئے. جس میں محو عبادت رہی فاطمہ, جس میں محو عبادت رہی فاطمہ, بے اجازت نہ جبریل آئے جہاں, بے اجازت نہ جبریل آئے جہاں. جس میں پیدا ہوئے ہیں حسین و حسن, جس میں پیدا ہوئے ہیں حسین و حسن, ہم کو اس گھر کا قصہ سنا دیجئے. جس میں پیدا ہوئے ہیں حسین و حسن, ہم کو اس گھر کا قصہ سنا دیجئے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ جن کی ہمت پہ دنیا بھی حیران ہے, جن کی ہمت پہ دنیا بھی حیران ہے, جس کا شاہد وہ کربل کا میدان ہے, جس کا شاہد وہ کربل کا میدان ہے. دے گئے ہیں تو اسلام کو زندگی, دے گئے ہیں تو اسلام کو زندگی. ان 72 کا قصہ سنا دیجئے. دے گئے ہیں تو اسلام کو زندگی, ان 72 کا قصہ سنا دیجئے. یہ ہے آخری شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ اللہ بچہ وہ 6 ماہ کا, اللہ اللہ بچہ وہ 6 ماہ کا, کیا ستم ہے نہ اس کو بھی بخشا گیا, کیا ستم ہے نہ اس کو بھی بخشا گیا. جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے کبھی, جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے کبھی, اس کو اصغر کا قصہ سنا دیجئے. جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے کبھی, اس کو اصغر کا قصہ سنا دیجئے.
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی لائق صد احترام ارباب منبر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ اس پر عمل پیرا نہ ہوں گے تو یہ ڈگر اتنی آسان نہیں ہے میرے پاس۔ رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں تم اس وقت تک فلاح یافتہ نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر ڈالو۔ جب تک رب کی بارگاہ میں ہماری وہ چیز جسے ہم پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، جب تک اس کو خرچ اللہ کی رضا کے لیے نہ کریں، رب نے یہ فیصلہ فرما دیا تب تک کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر بندہ جانتا ہے دنیا کے اندر مختلف طریقے کی محبتیں ہوتی ہیں، بچوں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، خاندان سے محبت ہے، جان سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، لیکن ان کے درجات سب کے الگ الگ ہیں۔ آدمی پیسے سے بڑی محبت کرتا ہے مگر پیسے سے زیادہ محبت اپنے پریوار سے کرتا ہے، اور اپنے پریوار سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے وطن میں تنگ دستی کا سامنا ہو تو وہ اس پریوار کے ساتھ میں رہتا ہے، لیکن اس محبت کو چھوڑ کر پیسے کی محبت، ان کی محبت کی وجہ سے وہ وطن چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی محبت ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد میں پھر اس مال کی محبت کی وجہ سے اپنے پریوار پر مال کمایا، دنیا بھر کا یہاں تہاں سے پریشانی ہونے کے بعد پھر گھر آیا، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ جو مال کمایا کتنی پریشانیوں سے، کتنی مصیبتوں کے ساتھ کمایا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے کے بعد میرے گھر والے کی جان بچ جائے۔ اس کے بعد پھر محبت اس کے اوپر آتی ہے تو وہ اپنی جان کی محبت آ جاتی ہے۔ لیکن رب نے جو ہم سے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اے لوگوں تم اس وقت تک فلاح یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر ڈالو، خرچ نہ کر ڈالو۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہمارے لیے ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جس کا عہدہ، جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جس کو جتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم تمام اشرف المخلوقات میں اللہ نے یہ فریضہ ہمیں عطا فرمایا، یہ منصب ہمیں عطا فرمایا کہ دنیا میں زبان والے بہت ہیں، دنیا میں حیوان ناطق بہت ہیں، مگر ان تمام میں جو فضیلت اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دنیا کی ساری امتوں میں سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روک دیتے ہو۔ عزیزان گرامی، ہر بندہ اب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ خود برائی سے کتنی دور ہے، وہ کب لوگوں کو برائی سے روک رہا ہے، وہ کب لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو جانچ کر دیکھیں، الا ماشاءاللہ ہر آدمی صرف اور صرف ڈبل زیرو لیے نظر آئے گا، کیونکہ ہم خود گنہگار ہیں، دوسروں کو گناہوں میں ملوث تو کرتے ہیں مگر کبھی ہم اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اور میں نے کہا سنو، جب تک رب کی طرف نہیں لوٹو گے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رب فرما رہا ہے جب تک تم رب کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو اس وقت تک تم کبھی بھی فلاح یافتہ نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں اللہ نے بے شمار دولت لوگوں کو عطا فرمائی، اللہ نے مختلف درجات کے لوگوں کو دنیا میں وجود بخشا، کسی کو اتنا بڑا مال عطا فرما دیا کہ لوگ اس کے دروازے پر اپنا دستے گرائی پھیلاتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں رب نے بھیک کا کٹورا عطا فرما دیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت آپ کو دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ خوش ہے؟ میں نے کہا دولت تو رب نے فرعون کو بھی عطا فرمائی تھی، دولت تو رب نے قارون کو بھی عطا فرمائی تھی، دولت تو رب نے شداد کو بھی عطا فرمائی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ختم نہیں ہے کہ جس کو رب نے اپنا مال دے دیا وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا سنو، وہ دولت رب کو راضی کرتی ہے جو دولت رب نے عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے، اس لیے اپنی دولت وہ رکھو جو حضرت عثمان غنی جیسی ہو، اور رب
से दुआ किया करो कि अल्लाह तूने मुझे दौलत दी है तो दौलत के साथ साथ मुझे उस्मान गनी जैसा ईसार भी अता फरमा दे। जिस दिन हमारा ये नजरिया हो जाएगा इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज हमारा हाल ये है, हम अपने जहनी तौर पर, मैं एक जुमला कह रहा हूं बार बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज लगा कि हम मुसलमानों के मोहल्ले में रहते हैं, ये तो हमारी आज मुआशरे की हालत हो गई है कि जुमे के दिन ही मुसलमान बरसते हैं आसमान से, जुमा खत्म मुसलमान खत्म। मैंने कहा ये आज जो हम दुनिया भर के झमेले झेल रहे हैं ना, अजानों पर पाबंदी, नमाजों पर पाबंदी, इस पर पाबंदी, उस पर पाबंदी, मैंने कहा अगर तुमने इसको पहले से पकड़ लिया होता दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी जो तेरे सामने खड़े होने की ताकत रखता। जब से तुम और हम भीट हो गए तब से दुनिया के कुत्ते भौंकने लगे हम पर। अब भी समझ लो, बस समझ लो और अपने आप को बदलो और उस आयत पर अमल करके देखो। रब ने फरमाया था ना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम को कभी नहीं बदलता जो कौम अपने आप को नहीं बदलना चाहती है। मैंने खुद को बदलने की कोशिश करो। मैं बताना ये चाहता था कि आज हम ज़हनी तौर पर अय्याश हो गए। आज हमें वहां मजा आता है जहां लोग हमारी तारीफ करते हैं। आज हमें मजा वहां आता है, हम वहां खर्च करना चाहते हैं जहां लोगों में हमारे देने का चर्चा हो, जहां लोगों में देने की हमारा जिक्र हो रहा हो। मैंने कहा सुनो, वो लोगों की तारीफ चंद दिन की होगी, अरे ये सोचा करो कि कहां देने से रब राजी हो जाएगा। इसलिए जब रब राजी होगा तो उसके खजाने खुले हैं, वो तुझे दुनिया में भी ज्यादा अता फरमाएगा और मरने के बाद उसकी जन्नत अता फरमा देगा। मैंने कहा रब कह रहा मैं युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे? मैंने कहा वो खालिक जो सारी दुनिया को पैदा करवाने वाला है, वो रब जिसने हमें और आपको सबको अता किया, वो रब हमसे कर्जा मांग रहा है? क्या उस रब को जरूरत है? नहीं, वो करीम है, रहीम है, हमें देता भी है और हमारी बख्शिश के जरिए भी हमें बताता है। यानी माल भी खुद दे रहा है, फिर हमसे कर्जा ले रहा है। मतलब ये है कि आप रब की रजा के लिए अगर दुनिया में कुछ खर्च करते हो, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका बदला अता फरमाता है और मरने के बाद तो फिर आपको जन्नत में आला मकाम मिलेगा ही। अब गिराने गिरामी, मैंने कहा कि आज हमारी हालत ये हो गई है कि हम वहां चीजों को खर्च करना चाहते हैं अपने माल को जहां लोगों में हमारा चर्चा हो। मैंने कहा इतना याद रखो, आज दुनिया का हाल ये हो गया कि लोग अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हजारों बल्कि लाखों रुपए इस तौर पर उड़ा देते हैं कि लोगों के दरमियान उनका चर्चा हो जाए। अब ईदान गिरामी, लेकिन जब रब के दीन की बात आती है, अल्लाह के घर की बात आती है, तो हम में से सबका हाल ये होता है अल्लाह माशाअल्लाह के सारे के सारे गरीब के दर्जे में पहुंच जाते हैं। मैंने कहा सुनो, जिस रब ने सारी दौलतें अता फरमाई हैं, जब उस रब के लिए हमारा खुलूस ही नहीं होगा तो फिर हमें उसकी अजर सवा कैसे मिलेगा? अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए याद रखो, जो रब आपको दे रहा है उसके खजाने में कमी नहीं है। हमें चाहिए कि हम रब से मांगते रहें और उस रब का वादा भी है जो मेरे लिए एक दिरहम खर्च करता है, मैं अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 दिरहम अता फरमा देता हूं। मैंने कहा तेरा खजाना खत्म हो सकता है, मेरे रब का नहीं। रात मोहतरमा, आज हमारी मसाजिदों का ये हाल हो गया। अभी जिस दौर से आपकी और हमारी ये मस्जिद गुजर रही है आप सबको मालूम। मैं तो बाहर से हूं, आप तो यहीं के हैं ना, ये उनसे पूछो जो इसके जिम्मेदारान है। कितनी ठोकरों और टक्करों पर जाकर के आप की नमाज का एहतमाम किया जा रहा है। रात मोहतरम, दुनिया में जो कमाया जो खर्च किया वो दुनिया में खत्म हो जाता है, बाकी सिर्फ वही रहता है जो हमारे अल्लाह के लिए कर देते हैं। हुजूर के हदीस पाक है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, सरकार बैठे हैं, एक अंसारी सहाबी तशरीफ लाए और एक बकरा हदिया दिया मुस्तफा को, क्योंकि सदका नबी नहीं खा सकते, सदका सादात नहीं खा सकते। हुजूर को हदियतन एक बकरा दिया गया, ज़िबा करके सरकार करीम ने कबूल फरमाया और उसके बाद हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सुपुर्द फरमाया। सरकार बाहर तशरीफ ले गए। उसके बाद हुजूर तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान तशरीफ लाए घर में, तो सैयदा आयशा से पूछा कि आयशा, क्या कुछ उसमें से हदिये में से बचाया है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम था कि हुजूर को हाथ का गोश्त ज्यादा पसंद है, इसलिए बाकी सारा बकरा आपने दूसरों में तकसीम फरमा दिया, एक हाथ का गोश्त बचा करके रख दिया। और किया या रसूलल्लाह, मैंने आपके लिए एक हाथ बचा करके रखा है। सरकार फरमाते हैं बस वही नहीं बचा सकते। समझ में आई बात? नहीं आई, सर से ऊपर निकल गई। हुजूर ने, सैयद आयशा ने फरमाया एक हाथ बचाया, हुजूर ने फरमाया बस वही नहीं बचाया।
यानी नबी बताना ये चाहते हैं कि जो तुमने रब की रजा के लिए दे दिया वो सब कुछ हमारे लिए बच गया, जो हमने अपनी जात के लिए बचाया बस वही आखिरत के लिए नहीं बचा। अज़ीज़ान गिरामी, मगर आज हमारा हाल ये है कि हम दुनिया की सारी दौलत सिर्फ अपने लिए बचाते हैं, आखिरत के लिए कुछ जमा ही नहीं करते। मैंने कहा इतना याद रखो, मरने के बाद जो माल तूने कमाया है वो तेरे वारिसों में तकसीम हो जाएगा, तेरे काम आने वाला कुछ नहीं, तेरे काम सिर्फ वो आएगा जो तू अल्लाह के घरों में दे देता है, जो अल्लाह के घरों के लिए देता है, जो दीन के लिए खर्च करता है। इंशाअल्लाह वो तेरी कब्र में भी काम आएगा, तेरे लिए हश्र में भी काम आएगा। हज़रात मोहतरम, आज हम गरीब हो जाते हैं कब? जब दीन की बात आती है। मुझे बेटे की शादी करना है, मैंने 20 लाख का वलीमा कर दिया। मुझे बेटी की शादी करना, मैंने 50 लाख रुपए उसकी शादी में खर्च कर दिए। लेकिन जब कभी दीन की बात आई तो फिर मैं भीख वाला कटोरे वाला भिखारी बन करके खड़ा हो गया। मैंने कहा जिस दिन तक दीन की खातिर तुम्हारा दिल नहीं जागेगा, जिस दिन तक तुम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपने मालों के दरवाजे नहीं खोलोगे, उस वक्त तक परेशानियां तुमसे दूर नहीं हो सकती। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले हो, तुम हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाले हो, तुम अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करने वाले हो। मैंने कहा देखो कुरान उनकी शान में आयत करीमा नाजिल फरमा देता है, अल्लाह तबारक व तआला व युतिमूना अला हुब्बिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर बीत के घर वाले वो हैं जो खुद तो भूख पे भूखे हैं, मगर जो उनके दरवाजे पर अल्लाह के लिए आता है उसे कभी खाली नहीं लौटाते। आपने कभी सोचे इस बारे में? हज़रात मोहतरम, इसलिए याद रखें, अपनी गुर्बत को अपने पास ना रखो, बल्कि गुर्बत से दूर होना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होते रहो और अल्लाह तबारक व तआला दीन की खिदमत करते रहो। हज़रात मोहतरम, आज हमारी मसाजिद का यही हाल है, आज हमारे मदारिस का यही हाल है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऐसा ज़हनी तौर पर अय्याश बना लिया कि हमें सुकून वहां मिलता है जहां लोगों में तारीफ हो। मैंने कहा सुनो, अगर तुम मस्जिद में दोगे तब भी लोगों में तारीफ होगी। बता रहे थे भाई साहब कि उनके यहाँ पर एक मस्जिद में कोई आता है, आज तक किसी को पता नहीं चला, कई साल हो गए। हर जुमे को 12,000 रुपए रख के जाता है एक लिफाफे मस्जिद के, इमाम साहब के रख के जाता है अलग, मौलवी साहब के रख के जाता है अलग, लेकिन आज तक किसी ने देखा ही नहीं कि कौन रखने आता है, क्यों रख कर जाता है। मस्जिद को 12 चौके 48,000 रुपए, और किसी महीने में 5 जुमे भी पढ़ते होंगे ना, तो 12 पंजे 60 हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, उसको भी रब ही दे रहा है ना। लेकिन ऐसे ऐसे भी हैं। मैंने कहा यार खुलूस जिंदा करो मेरे भाई। आज हम अपने घर बनाएं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में रहें, हमारे लिए इसकी जरूरत है, हमारे लिए अच्छे मार्बल की जरूरत है। मैंने कहा ये सब जमीन के ऊपर जब तक सांसें चल रही हैं, जिस दिन मरोगे चंद घंटे घर वाले घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे जल्दी करो ले जाकर के दफन कर दिया जाए। मैंने कहा अपनी कब्र के लिए कभी हमने कुछ सोचा? वो कब्र जो तारीख, जिसमें किसी रोशनदान तक की इजाजत नहीं है, जिसमें कोई रोशनी का नामो निशान नहीं, जिसमें किसी ठंडी हवा का कोई नामो निशान नहीं। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कब्र या तो जहन्नम की वादियों में से एक वादी का नाम, गड्ढे का नाम है, या जन्नत की क्यारियों में से क्यारी का नाम है। तुम दुनिया में जैसा अमल करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को उसी हाल में तब्दील फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए मरने से पहले सोचो कि कब्र में जाकर हमें क्या करना है। हदीस मैंने जिसका आपके सामने भी जिसकी तिलावत की, सरकार फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन फबनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जन्नत में आलीशान महल तामीर फरमाता है जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिदें तामीर करता है, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है। अज़ीज़ान गिरामी, आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, क्या हमारी नजरों के सामने नहीं? आज कोई ये कह नहीं सकता कि हमें पता नहीं। मैंने तुम बैठे कहीं भी हो और सारी दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती हैं। हर बंदा ये जानता है कि हमारे इस्लाम के साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद भी हम बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस मस्जिद को जरूरत हो, हम गरीब नहीं हो जाते। हम जब मस्जिद में अपनी मार्केट जाए तो हमारे लिए 500 और 1000 की कोई औकात नहीं होती, लेकिन हम मस्जिद में आए तो हमें 100 का नोट भी बहुत बड़ा हाथी का पैर लगता है। अज़ीज़ान गिरामी, इतना याद रखो कि मार्केट में जा रहे हो, अपनी जात के लिए खर्च करने जा रहे हो, वो जो खर्च करोगे आखिरत में उसका अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो यहाँ खर्च करोगे वो तुम्हें दुनिया में भी उसका बदला मेरा रब अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र व हश्र में भी अता फरमाएगा। एक हदीस और सुने, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं,
मुनक़ता मतलब अब वो कोई नेकी अपनी जात के एतबार से नहीं कर सकता, ना कोई गुनाह कर सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि अब मर गया, अब कुछ नहीं कर सकता। मरने से पहले कुछ किया नहीं, मरने के बाद में क्या खाब करेगा? मर गया, कुछ नहीं कर सकता, सारे अमाल उसके रोक दिए गए। मगर सरकार फरमाते 3 अमाल ऐसे हैं कि बंदा मर भी जाए तब भी अल्लाह ताला उसका सवाब जारी रखता है। कौन कौन से? हुजूर फरमाते हैं सदक़तुन जारिया, उसमें पहला सदक़ा जारिया है। फिर सदक़ा जारिया की मुहद्दिसीन ने तशरीह फरमाई कि सदक़ा जारिया क्या है? कहते हैं किसी मस्जिद में आपने अगर कुछ पैसा लगा दिया है, अब जब तक उसमें नमाजें होती रहेंगी, हर बंदा जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसकी नमाज से आपको भी सवाब अता फरमाता रहेगा। आपने किसी मदरसे को आपने खिदमत कर दी, अब उसमें जब जब कुरान की तिलावत होती रहेगी, हदीस पढ़ी जाएगी, कोई मसला सिखाया जाएगा, जितना सवाब अल्लाह ताला उस पढ़ने और सिखाने वाले को अता फरमाएगा, उतना ही सवाब आपके मरहूमीन को अता फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी बात मेरे नबी फरमाते हैं, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या किसी ने कोई नेक बच्चा छोड़ दिया, शराबी और कबाबी नहीं, अय्याश नहीं, ऐसा बच्चा छोड़ा जिसकी रगो पे में मुस्तफा की मोहब्बत दौड़ रही है। साहबा सिर्फ हुसैन की मोहब्बत करने वाला नहीं, बल्कि जिसके किरदार में हुसैन के किरदार की झलक नजर आ रही है, वो इंसान जो हुसैन आदम के किरदार पर अमल करने वाला हो, ऐसा बच्चा अगर छोड़ा, सरकार फरमाते हैं कि जब वो हाथ उठाकर अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ के सदक़े उसके माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। हमने तो तरबियत ऐसी की कि हमें तो उसका यही नहीं पता कि वो हमारे लिए हाथ भी उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तीसरी बात नबी फरमाते हैं, ओ भी, या किसी ने ऐसा इल्म छोड़ दिया जिससे लोग नफा हासिल करें। अब उसके लिए चंद चीजें मुहद्दिसीन ने शारहीन ने बयान फरमाई। कहते हैं कि उसने इल्म नाफे का मतलब यह है कि उसने किसी बच्चे को, जैसे मुफ्ती साहब के मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखा कोई गरीब बच्चा, आप गए मुफ्ती साहब के पास हो, जाकर कहा मुफ्ती साहब कोई अगर गरीब ज्यादा बच्चा हो तो उसकी किफालत की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप मुझे वो बच्चा बता देना, मैं उसके खाने से लेकर रहने सहने पे और पहनने ओढ़ने की जिम्मेदारी दूंगा। आपको बता दिया मुफ्ती साहब ने, आपने उसकी किफालत कर दी, अब वो बच्चा हाफिज कुरान हो गया या आलिम दीन हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, जितने मसाइल उसने पढ़े, जितना कुरान उसने पढ़ा, हर हर्फ का सवाब आपको भी मिलेगा। उसके बाद वो बच्चा किसी दरगाह में बैठा और बैठने के बाद अब उसने उसको बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अब उसने 10 हाफिज कुरान बना दिए, अब ये 11 हो गए, 11 जितना कुरान पढ़ेंगे उसका सवाब भी आपको मिलेगा। फिर वो 10 दरगाहों में बैठे, उन्होंने 10 को पढ़ाया। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर वो 111 हो गए, अब वो जितना कुरान पढ़ेंगे अज़ीज़ान गिरामी उसका सवाब भी आपको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता रहेगा। कि आपने कुछ दीनी किताबें थी जो मदारिस में दे दी हैं, जब जब वो किताब पढ़ी जाएगी, उससे जो मसला सीखा जाएगा, अल्लाह ताला उसका भी सवाब आपको अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए हम दीन की खिदमत करते रहें। हम जहां अपनी खिदमत करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारे साथ है, हमें अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी साथ में है, मगर उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहें। और जब कभी जरूरत हो हमारी मसाजिद को, हमारे मदारिस को, कसम अल्लाह की हमें चाहिए कि हम आगे बढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक का किरदार अदा करें कि जिस सिद्दीक ने घर का सारा माल लाकर मुस्तफा की बारगाह में कहा था, और नबी ने पूछा था सिद्दीक घर पे क्या रखा, तो कहा था परवाने को चिराग को, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन की खिदमत करें। आप इस मस्जिद को जरूरत है अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से, अपने बाप दादाओं के नाम से इसमें खिदमत करते रहो। अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा, उनको भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया सदका अगर 100 हाथ से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 हाथों को सवाब बराबर अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, हम ही तो करेंगे, हमारे पास कौन से ऐसे हैं या कौन से हमें सरकारी यहाँ की तनख्वाहें मिल रही हैं, हम नमाजें अदा करते हैं और ये हमारी मस्जिद सबसे बेहतर है कि नहीं?
हमें ही इनकी हिफाजत करना है, जान से भी और माल से भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दीन की खिदमत करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी मसाजिद और मदारिस की खिदमत करें। अबू बकर के नाम पर, उमर के नाम पर, उस्मान और अली के नाम पर, सैयदा फातिमा के शहजादों के नाम पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी जैसे जाहिर भाई है और हजरात जो इस मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, आप उनसे राबता किया करें, उनसे पूछा करें कि जरूरत किस चीज की है। कसम अल्लाह की अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो अल्लाह की रहमत आपके लिए आगे बढ़ जाएगी। आगे तो बढ़, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुज़िस्ता पैदा। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। हमें अपनी मसाजिद और मदारिस की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह की मस्जिद की हिफाजत फरमा और हमारे हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।